السلام علیکم دوستو آج ہم پھر جانیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک اور واقعہ۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، عمر درویش ابھی خیمے میں تھا۔ باہر دو مشعلیں جل رہی تھیں جن کے ٹھنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ لوگ خدا کے ایلچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی۔ عائشی سامنے آئی۔ اس کا لباس سیاہ تھا۔ یہ ایک فراق سا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا۔ اس پر ابرق کے ذریعے چپکے ہوئے تھے جو مشعلوں کی روشنی میں ستاروں کی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے تھے۔ عائشی کے سر پر ریشم کا باریک ایک رومال تھا۔ اس کے بال اسی ریشم جیسے تھے جو شانوں پر اسی انداز سے پڑے ہوئے تھے کہ عریاں شانوں کی سفیدی ان میں ستاروں کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کا بناؤ، سنگار اور سج دھج ایسی تھی جس میں طلسماتی سادہ تعصب تھا اور جو حیوانی جذبے کو اکساتی تھی۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی، اس کی چال اور اس کا لباس عجوبے سے کم نہ تھا۔ ان کی نظریں گرفتار ہو گئی، ان پر سیر تاری ہو گیا۔ عاشق کے ایک ہاتھ میں گز ڈیڑھ لمبے اور اس سے آدھے چوڑے قالین کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے دونوں مشعلوں کے درمیان بجھا دیا تھا۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ خیمے کا پردہ ہٹایا اور عمر درویش مستانہ چال چلتا قالین پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی عاشق کی طرف بازو دائیں بائیں پھیلائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ اے خدا کی برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان تین آدمیوں سے ایک تھا جن کا ذکر پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا، تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں، مگر ایک شک ہے۔ ہمیں طور کا جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ مصر فرعونوں کا ملک ہے، عمر درویش نے بلند آواز سے کہا۔ فرعون مر گئے مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فرعون بنا۔ یہ مصر کی زمین کی، مصر کے پانی کی اور مصر کی ہوا کی تاثیر ہے۔ جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی فرعون بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کو للکارا اور نیل کے پانی کو کاٹ کر دکھا دیا۔ اب مصر ایک بار پھر فرعون کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین کنواریوں کے اسبوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خدا ذوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فرعونوں سے آزاد کراؤ۔ خداوند عالم نے تمہیں کوہ طور کا جلوہ بخشا ہے۔ عمر درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جوشیلی آواز میں کہا، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مشعل زمین سے اکھاڑی۔ رات تاریک ہو چکی تھی۔ پہاڑ، چٹانیں اور درخت اندھیرے کی سیاہی میں روپوش ہو گئے تھے۔ روشنی صرف ان دو مشعلوں کے شعلوں کی تھی جس میں عمر درویش اور عاشی نظر آ رہے تھے۔ عمر درویش نے مشعل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، ادھر ایک پہاڑی ہے۔ تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا جلوہ دیکھو۔ اس نے مشعل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرائی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سی ایک شعلہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوئے ختم ہو گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت زدگی نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ اگر تم خدا کے واسطے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شعلہ جو تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریگزار بنا دے گا۔ عمر درویش نے کہا، میں اسے روک نہیں سکوں گا، اسے تم نے دعوت دی ہے۔ عمر درویش اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عاشی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلے جائیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی جو ان کے ساتھ تھا وہ دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف منہ کر کے رک گیا۔ سب نے دیکھا وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگرنی ہے جو تم دیکھ آئے ہو، یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا نہ آئے گا۔ خدا ایسے گناہ گاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ یہ لڑکی نہیں ہے، جن ہے۔ ایک آدمی نے کہا، جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے۔ امام نے کہا،
जिन्नात किसी इंसान के गुलाम नहीं हो सकते। मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिरौन नहीं, वो खुदा का सच्चा बंदा है। इसने पैगंबरी का दावा नहीं किया। वो तो अपने आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा आशिक और शिदाई और जांबाज है। वो तुम्हारे मजहब का पासबान और स्लेब का दुश्मन है। मोहतरम इमाम, एक आदमी ने कहा, क्या आप पानी को आग लगा सकते हैं? इसकी ना सुनो। एक और ने कहा, ये अपनी इमामत कायम रखना चाहता है। हमने जो देखा है वो आप दिखा दें। एक और ने कहा, फिर हम आपकी इताअत कबूल कर लेंगे। मेरे साथ इस पहाड़ी पर चलो जहाँ से शोला उठा था। इमाम ने कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये क्या शोबदा है। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे उसी जगह कत्ल कर देना जहाँ शोला भड़का था। हम खुदा के कामों में दखल देने की जुर्रत नहीं करेंगे। एक आदमी ने कहा। दो तीन आदमी बेयक वक्त बोल पड़े, वो भी इमाम के खिलाफ बोल रहे थे। इन्होंने लोगों को ऐसा इश्तियाल दिलाया कि सब चल पड़े और इमाम को धक्के देते हुए आगे चले गए। इमाम अकेला खड़ा रहा। कुछ देर वहां खड़े रहकर इमाम इस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिस पर शोला उठा था। वह बहुत ही तेज चला जा रहा था। एक पथरीले वीराने से गुजर कर चट्टान के दामन में पहुंचा तो दो आदमी इससे कुछ पीछे चले जा रहे थे। इमाम चट्टान के साथ साथ चला जा रहा था। पीछे जाने वाले दोनों और तेज हो गए। इनके कदमों की आहटें सुनकर इमाम रुक गया। वो दोनों इसके करीब जा रुके। इनके चेहरे कपड़ों में छुपे हुए थे। इमाम ने इनसे पूछा कि वो कौन है। इन्होंने कोई जवाब न दिया। इनमें से एक इमाम के पीछे चला गया। इमाम इसी तरह मुड़ा तो दूसरे ने इमाम की गर्दन के गिर्द अपना बाजू लपेट लिया। इमाम ने कमर बंद से खंजर निकाला, मगर इसका खंजर वाला हाथ एक दूसरे के हाथ के शिकंजे में आ गया। इसकी गर्दन दूसरे आदमी के बाजू के शिकंजे में थी, जो इतना तंग और सख्त हो गया था कि इसका सांस रुक रहा था। इसने आज़ाद होने की आखिरी कोशिश की। वो पूरी ताकत से उछला, दोनों पांव जोड़कर सामने वाले के पीठ में मारे। इसे पीछे एक आदमी ने जकड़ रखा था। सामने वाला इमाम की लातों से पीछे को गिरा। उसके पीछे वाला धक्का बर्दाश्त नहीं कर सका। वो भी पीछे को गिरा और इमाम की गर्दन पर इसके बाजू की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इमाम ने एक और झटका दिया और आज़ाद हो गया। वो अब एक खूनरेज़ लड़ाई के लिए तैयार हो कर उठा, लेकिन वो दोनों आदमी भाग गए। इनके भागने की वजह सिर्फ ये हो सकती थी कि वो दोनों इस इलाके के मुसलमान थे। इन्हें पहचाने जाने का खतरा था। इमाम ने इन्हें पुकारा, ललकारा, लेकिन वो गायब हो गए थे। इमाम ने आगे जाना मुनासिब ना समझा और वहीं से वापस चला गया। उमर दरवेश के खैमे में वही तीन आदमी बैठे थे जो दिन के वक्त भी इसके पास आए थे। इन्होंने उमर दरवेश को बताया कि लोग वही तासुर लेकर गए हैं जो इन पर पैदा करने की कोशिश की गई थी। इन्होंने इसे ये भी बताया कि कल रात इसे आगे एक और गांव के करीब जाना है और तूर का जलवा एक और पहाड़ी पर दिखाना है। तीनों चले गए। आशी उमर दरवेश के साथ अकेली रह गई। क्या तुम अपनी कामयाबी पर खुश हो? आशी ने पूछा। आशी उमर दरवेश ने आह लेकर कहा, मैं तुम्हें इस किस्म के सवालों का जवाब देने से डरता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सलेबियों और सूडानियों के हाथों में खिलौना बनी रहूं? आशी ने कहा, तुमने मेरे अंदर ईमान बेदार किया है और अब तुम मुझ पर एतबार नहीं करते। मैं एतबार तुम्हारे अमल पर करूँगा। उमर दरवेश ने कहा, तुम्हारे अल्फाज पर नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आशी ने कहा, जो कहोगे करूँगी। अभी यही करती रहो जो कर रही हो। उमर दरवेश ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। हो सकता है तुम्हें यह बताने का वक्त ही ना मिले कि मुझे क्या करना है। आशी ने कहा, तुमने देख लिया है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जासूसों का जाल बिछा हुआ है। जहां तुमने ज़रा सी मशकूक हरकत की, ये जासूस तुम्हें गायब या कत्ल कर देंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अगर तुम मुझे पहले ही बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है तो मैं तुम्हें बर वक्त खबरदार कर सकूंगी। मुझे तो वो बहरहाल अपने गुरु का काफिर समझते हैं। आशी के अंदर में कुछ ऐसी सादगी और खुलूस था जिससे उमर दरवेश कायल हो गया कि ये लड़की इसे धोखा नहीं देगी। इसने कहा, तुम्हारे कमालात देखता हूँ तो डरता हूँ कि तुम मुझे धोखा दोगी। कमालात में तो तुम भी कम नहीं हो। आशी ने कहा, इसलिए तो मैं महसूस कर रही हूँ कि तुमने अपनी कौम को धोखा देने का पुख्ता इरादा कर लिया है। मैं तुम्हें अपना इरादा बता देता हूँ, उमर दरवेश ने कहा, और ये भी बता देता हूँ कि तुमने अपना वादा पूरा ना किया और मुझे फरेब दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं कत्ल हो जाने से नहीं डरता।
उलकतर करने से भी नहीं डरूंगा। मैंने रास्ते में तुम्हें बता दिया था कि मैं किसी और मकसद के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ अपने इलाके में आकर अपने खुफिया मकसद में आसानी से कामयाब हो जाऊँगा, मगर यहाँ आकर देखा है कि सूडानियों ने मुझे जासूसों के घेरे में ले रखा है। मुझे दूसरा काम ये हो रहा है कि मैंने अपनी कौम की पीठ में खंजर उतार दिया है। मैं अपने असल मकसद की खातिर अपने आप को पोशीदा रख रहा हूँ, मगर मेरी कारस्तानी, जिसे तुम मेरा कमाल कहती हो, मेरी कौम के मजहबी अकीदे को जहर की तरह मार रही है। मैंने अगर ये सवांग यानी ड्रामा बाजी को जारी रखा तो ये मुसलमान सूडानियों की गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे और इनका कौमी वकार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? आशी ने पूछा। मैं इसहाक के गांव तक पहुंचना चाहता हूं, उमर दरवेश ने कहा। तुम इसहाक को जानती हो ना, वही कमांडर जो जंगी कैदी की हैसियत से कैद खाने में पड़ा है। इसे अपने रंग में रंगने के लिए तुम्हें भी एक रात इसके पास भेजा गया था। इस शख्स को तो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगी, आशी ने कहा। इसकी भी इतनी ही मुरीद हूँ जितनी तुम्हारी हूँ। मैं इसके घर तक पहुंचना चाहता हूँ, उमर दरवेश ने कहा। फिर मैं अपने गांव जाने का इरादा रखता हूँ। मैं ये सोचकर आया था कि यहाँ आकर गायब हो जाऊंगा और यहाँ के लोगों को बताऊंगा कि वो सूडानियों के हथकंडों से बचें। मालूम होता है तुमने कोई बाकायदा मंसूबा नहीं बनाया था, आशी ने कहा। हमें जिस काम के लिए भेजा जाता है इसका बड़ा वाज़ेह मंसूबा दिया जाता है। मैं कैद खाने में जालिमाना अजियतें सह सह कर निकला हूँ, उमर दरवेश ने कहा। इतनी ही अक्ल रह गई थी कि कैद खाने से निकलने का यह तरीका सोच लिया था। यहाँ आकर हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने मकसद की कामयाबी नामुमकिन नज़र आती है। अब मुझे सोचने दो, आशी ने कहा। अगर हम खुदा की राह में साबित कदम रहे तो अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। कल हम आगे जा रहे हैं, कोई सूरत निकल आएगी। ज़रूरत ये है कि हमें यहाँ के किसी अक्लमंद आदमी के साथ मुलाकात का मौका मिल जाए। इसी इलाके में उमर दरवेश के खेमे से 2-2.5 मील दूर मिस्री ताजरों का एक काफिला आया। 4 आदमी और 6 ऊँट थे। काफिले का सरदार लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग सीरत इंसान था, जिसने एक आंख पर सब्ज रंग के कपड़े का टुकड़ा लटका रखा था, जैसे इसकी ये आंख खराब हो। ये काफिला 2 रातें पहले सूडान की सरहद में दाखिल हुआ था। पहले बताया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी ने मिस्र से सूडान में अनाज स्मगल करने की दरपर्दा इजाज़त दे रखी थी। दूसरी अजनास भी स्मगल की जाती थी, यानी जिसमें हथियार, आतशगीर मादा, तलवार, तीर, बर्छा और नेज़े होते थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।